Welcome everybody to this intense course on media literacy for students. We designed this course basically to impart this knowledge and understanding to school students on the issues of media literacy and relevant aspect. And this whole idea, in fact, came when we organized this international conference, ICANN 3, for 10 days in June, which was actually the world's first digital live conference. And since in that conference, our partner were Adamas University, Kolkata, and Professor Ujjwal Chaudhary, who is the Dean of Adamas University and who is the Pro Vice Chancellor of Adamas University and Dean of School of Media Communication and Fashion there. He mooted this idea that we should plan this kind of course so that we reach out to the students and we address the most pertinent issue of today's time because the dissemination of all such information which is not genuine, whatever name we put it in, whether it's a disinformation or misinformation, but all that information has to be checked somewhere. But the problem is when this kind of information is disseminated on the social media, we hardly understand, most of us hardly understand that there is something wrong with this information. And this is something which is not to be spread further, which is not to be forwarded further. And sometimes we even deliberately do it. Political people do it for their own motives. And even we find that this problem exists even in the mainstream media. So we felt the need that something should be done to address this problem and to create awareness among the people on this issue. And then obviously the best target audience could be the school students, because if they are made all these things understandable at this point of time while they are in the school in the 11th and the 12th standard. So once they grow up, they join the bachelor's degree in some university or college and they join the mainstream of the society. So they will be well aware of all these things and will be able to handle these things. So that's the basic objective. So to begin with, we designed this course, which is running into 12 sessions, and the total duration is the 18 hours. So the idea was, as I discussed with Professor Ujjwal Chaudhary, that we will do it as a CSR activity and we will try to approach the school student for this purpose. So this is the first step in the direction of creating awareness of media literacy. And we have approached, and the principals of two schools agreed to our request, and that is how the students who have joined these sessions include students from Mayur School Noida and Delhi World Public School Noida Extension, and then few of our students are also there. So and as far as steering the whole thing, two senior faculty members have joined hands with us in this endeavor. Dr. Asha Singh, who is Associate Professor in the School of Media, Communication and Fashion in Adamas University, and Ms. Yashasrika Yadav, who is Assistant Professor in DME Media School, Delhi Metropolitan Education. So now, as far as the sessions is concerned, few sessions are being taken by the faculty members of DME Media School, and a few sessions are being taken by the faculty members in the School of Media, Communication and Fashion in Adamas University. But definitely one major part of this whole exercise was that the students are told about the fact checking. And here we took the help of our friend, Mr. Nimish Kapoor, who is a senior scientist in Vigyan Prasar and who is an accredited fact checker by the Google, and he keeps on conducting workshop on this issue for the purpose of creating awareness. So he accepted our request to be with us in today's session. And to tell you something more about Mr. Nimish Kapoor, he is, as I told
you working as a senior scientist E in Vigyan Prasar. Vigyan Prasar is under the Department of Science and Technology in Government of India. He is a versatile professional for a long experience, for more than 25, 30 years of experience. He started his career as a media person. He worked with different news channels, and then he switched over to his current responsibility in Vigyan Prasar. And I must also tell you that he is a key person who is handling two festivals every year. One is the National Science Film Festival of India, which is a flagship event of Vigyan Prasar, and another is the International Science Literature and Film Festival. So these are the two very important film festivals wherein the films on the subject of science are screened. And besides that, a lot of such sessions are arranged with the top personalities of the country, whether it's the filmmakers and the scientists, to create awareness on the scientific issues. And Mr. Kapoor is also associated with so many other organizations, which include NCERT, CIET, and then Central Hindi Directorate, CMS Vatavaran Film Festival, which is a festival on environment. And then as far as the wire service or the content service of Vigyan Prasar is concerned, he is also heading that. So I welcome Mr. Nimish Kapoor to be with us in this session. And then I request Mr. Yashasrika Yadav to please take the session forward. Yes, sir. Sure, sir. We have Ujjwal sir with us. So in case Ujjwal sir would like to say something. Ujjwal sir? Okay, sir is not available. Asha ma'am, would you like to take over? Am I audible? Yeah. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Nimish Kapoor ji. आपका बहुत बहुत स्वागत है. We are really glad that you are here with us. And we have been listening to you, your YouTube videos we have seen, and I am sure our faculty members and more faculty members are joining from ADAMAS this session. They will be joining in another couple of minutes. And there are students who will be benefited from your session. So I'm really glad that you are here with us. We have been doing this and we have planned to do such sessions across schools, even in West Bengal. So we would perhaps again trouble you to do such sessions for school children and also faculty members, because anyway we are part of such sessions and we will be benefited and we'll be learning a lot. And science communication is such an important genre. And at this juncture, when we are living in a post-pandemic or even in a pandemic world, this genre is required even much more than before. So I really am glad that we are having this session today. And I would not waste a lot of time, and over to you, Yashasrika ji, so that you can hand over. Again, I think we're all waiting for the session, yeah. Sir. So please let us start now. Thank you, Asha ji, Yashasrika ji, Ujjwal ji, and Amrish ji. I'm glad to be here, delighted. Actually, today I have prepared something about fact verification, not science communication. If you are interested to listen to science communication, I can switch. I have both the things ready. So, आज fact checking के ऊपर ही रखिए. Right. So science communication is my core area, and I'm a science communicator as my profession, training, passion, and everything. And fact verification एक मेरा नया शौक develop हुआ पिछले 2018 में, और बाद I conducted several trainings. So I am a learner also. I am not a cyber expert. I have I have only जैसा knowledge आपके पास है वही मेरे पास भी है, जो cyber crime है या जो related to IT and all. So लेकिन I
as a fact checker, I know some 3-4 tools to verify fake images or manipulated content, miscommunication and photo, video को कैसे हमें verify करना है. तो उसके लिए I have one few slides to show and video to identify whether it is fake or not, कि सही है कि नहीं है, उसका source क्या है. So I'm just sharing my PPT first. I don't know, F5 is not working. Now is it visible? ठीक है, दिखाई दे रहा है ये? जी दिखाई दे रहा है. Pressing F5 for full screen, but it is not working. I don't know why. So I'm just continuing with this. So today's session is fake news and fact verification. तो उससे पहले मैं कुछ आपको स्लाइड शेयर करूंगा कि जो हमारा इंडिया की स्टोरी है फेक न्यूज की, वो क्या है. या आपने देखा होगा कि 2 साधुस among 3 killed by mob in Maharashtra. अभी लॉकडाउन के समय की बात है. तो मॉब लिंचिंग एक बहुत ही बड़ा इशू है जो फेक न्यूज से हमारे जो व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड होते हैं वो आता है और एकदम से जो एक बेगुनाह है, एक आम आदमी है, कोई भी हो सकता है, वो मॉब लिंचिंग का शिकार हो जाता है. तो ये एक बहुत बड़ा अपने आप में खतरा है और ये हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बहुत सारे रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशन बना रहे हैं. हमारे डिस्ट्रिक्ट स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें एक्टिव हैं कि कैसे इसको रोका जाए. लेकिन फेक न्यूज और मॉब लिंचिंग आपस में जुड़े हुए हैं और जो जिस तरह से ये एकदम से र्यूमर फैलता है और लोगों को जो है वो अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है. तो ये एक बहुत बड़ा खतरा है. There's some problem in my laptop. Just a minute. तो जो मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन है जो आपने देखा अभी बिहार रेलवे स्टेशन एंड मुंबई रेलवे स्टेशन में जो क्राउड आया और जिस तरह से लोगों को बताया गया कि ट्रेनें सरकार ने चला दी हैं और आपको अपने घर जाने के लिए ट्रेनें मिलेंगी और एक बहुत बड़ा क्राउड यहाँ पर इकट्ठा हो गया और ये र्यूमर कहीं ना कहीं से शुरू हुआ होगा और वो आगे फैलता चला गया. तो ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है और इसमें हर एक आदमी का, हर एक इंडिविजुअल को, जो हम मीडिया लिटरेसी की बात करते हैं, तो ये हमको जानना है कि जब वी गॉट दिस काइंड ऑफ फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन. तो मिस इन्फॉर्मेशन इज जब आदमी को नहीं पता कि वो जो इन्फॉर्म कर रहा है उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं है, लेकिन उसको एक गलत मैसेज मिला और उसने आपको फॉरवर्ड कर दिया, इन्फॉर्म कर दिया. तो ये एक गलत मैसेज को उसने आगे बढ़ाया, यानी मिस इन्फॉर्म किया. और अगर उसका इंटेंशन गलत है, उसका इंटेंशन मॉब लिंचिंग है, उसका इंटेंशन दंगा फैलाना है, तो वो आपको डिसइन्फॉर्म कर रहा है. राइट. तो ये चीजें फैलती हैं. हमें जो व्हाट्सएप में मैसेज मिलता है उसको हम ऐसे मैसेजेस को वहीं डिलीट कर दें. नंबर 2, उसको हम वेरीफाई करें, क्रॉस चेक करें विद दी पर्टिकुलर वेबसाइट, जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, WHO की वेबसाइट है या जो भी रिलेटेड वेबसाइट है, तो हम उसके बाद उसको फॉरवर्ड करें. क्योंकि आयुष मिनिस्ट्री ने ड्यूरिंग लॉकडाउन लॉट ऑफ पीपल forwarded a message with the logo of Ayush Ministry and Ministry of Health and Family Welfare and so on that they have made some Ayurvedic formulation to combat COVID. COVID का वो इलाज कर रहे हैं इस आयुर्वेदिक फार्मूला से, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था. When I called Ayush Ministry, Ayush scientists, then they told me that they have only communicated that Ayurvedic preparations are just for your immunity booster, not for your to combat COVID या आपको वो वायरस को डीएक्टिवेट कर देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. कोविड खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको केवल वो इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करेगा, तो आपको वो वायरस हो सकता है कि असर ना करे, कम करे. उसके बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं. तो कोई भी दवाई अभी तक ऐसी सामने नहीं आई है आयुर्वेदिक में की ट्रीटमेंट में कि वो आप सही हो जाए. लेकिन लोगों ने आयुष मिनिस्ट्री के लोगों के संग ये किया
और वो हमने फॉरवर्ड किया क्योंकि हमने आयुष मिनिस्ट्री का लोगो देखा। तो अभी हमें क्या करना है कि वी हैव टू वेरीफाई, वी हैव टू क्रॉस चेक विद द मिनिस्ट्री, विद द वेब पोर्टल WHO। उसके बाद वेरीफाई करने के बाद हमें आगे बढ़ाना है उसको। और अगर हमें कंटेंट नहीं मिलता है, हम जब वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें उसको वहीं डिलीट करना है और अपने उस फ्रेंड से बोलना है कि काइंडली डोंट रिपीट दिस, आप इसको आगे मत बढ़ाइए। ऐसा करना गलत है और ये गैर कानूनी है। आप ये आपके खिलाफ एक्शन भी हो सकता है। आज से हम कुछ साल पहले की बात करें, पूरे देश में गणेश जी ने दूध पिया था। तो ये हमारे देश में उस समय 25 साल पहले इतने सारे टीवी चैनल्स नहीं थे। सिर्फ अखबार हुआ करते थे और कुछ एक दूरदर्शन या कुछ चैनल शुरू हुए थे। और 95 या उसके आसपास 2 बार ये गणेश जी ने दूध पिया था और ये बीबीसी में खबर ब्रॉडकास्ट हुए थे और लोग अपने घर से कटोरी और चम्मच ले जाके गणेश जी को दूध पिलाया था। तो हमारे साइंटिस्ट आए थे मीडिया में एंड दे क्लियरली मेंशन, जो बच्चे हमें सुन रहे हैं वो जानते होंगे, देयर आर 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, वन इज कोहेसिव एडिसिव फोर्स एंड दूसरा इज सरफेस टेंशन एंड थर्ड इज कैपिलरी एक्शन। तो एनी वन प्रिंसिपल may be applied in any जो भी ये मूर्ति है, आप किसी भी मूर्ति को चम्मच से दूध लगाएंगे तो एक सरफेस बनेगा और दूध नीचे बह जाएगा। दूध इज लिक्विड, मूर्ति इज ठोस। तो उसमें एक कोहेसिव और एडिसिव फोर्स, यानी कोहेसिव फोर्स लगता है सेम मॉलिक्यूल में, लिक्विड में या उसका जो ठोस मॉलिक्यूल है उसमें। और जब ये लिक्विड जब कोई सॉलिड से टच करता है तो एक तरह का उसमें एडिसिव फोर्स भी आ जाता है और एक सरफेस बन जाता है। कहीं पे कैपिलरी बन गया होगा और वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू जो है वो दूध अंदर चला गया। तो ये सारी साइंस उसके पीछे थी, लेकिन लोगों ने उसको शायद उतना मैसेज नहीं जा पाया। और ये जब बीबीसी में, न्यूज़पेपर्स में और जो भी चैनल्स थे उसमें ये स्प्रेड हुआ और टन्स ऑफ लीटर्स ऑफ लीटर्स दूध बर्बाद हुआ। तो ये हमको देखना है, ये चीजें बहुत लंबे समय से चली आ रही हैं। एंड नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना वायरस, तो इसको भी हमको समझना है। हम जब छींकते हैं तो छींकने से जो हमारा थूक का कण है या जो हमारा सलाइवा है उसमें जो एरोसोल कहलाता है, वो एरोसोल को आप ऐसे समझ सकते हैं, ये इसको हम माइक्रोमीटर्स में नापते हैं। और एक जो एरोसोल का साइज है, इट कैन बी 10 raised to the power -6। इसको इफ वी एक्सप्लेन इन सिंपल लैंग्वेज कि हम 1 मीटर के अगर 10 लाख टुकड़े करें तो एक टुकड़ा 1 माइक्रोमीटर होगा, राइट? 10 पावर -6। तो ये 1 मिलियन, 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 lakhs। तो 1 millionth ऑफ ए मीटर इज 1 माइक्रोमीटर। तो हमने जो छींका, खांसा या हमारा जो सलाइवा बाहर आया जिसके थ्रू एक कोविड फैलता है, कोरोना वायरस फैलता है, तो वो माइक्रोमीटर्स में है, हो सकता है एरोसोल। और उस माइक्रोमीटर के एरोसोल में बहुत सारे नैनोमीटर वाले कोविड वायरस, कोरोना वायरस बैठे होते हैं। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 बिलियन ऑफ ए मीटर, 10 raised to the power -9। यानी 1 मीटर के 1 बिलियन टुकड़े करो तो एक टुकड़ा 1 नैनोमीटर बोलेंगे आप, ठीक है? तो ऐसे एक जो वायरस का साइज है वो 80 to 120 नैनोमीटर है। तो इतना छोटा वायरस है ये। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, इफ यू कैन, अपने जो सिर का बाल है उस बाल का जो मोटाई है उसकी मोटाई में यू जस्ट उसको एक्सपेंड करें आप, लाइक ए फुटबॉल प्लेग्राउंड। एक बाल को उसकी मोटाई में फुटबॉल प्लेग्राउंड के जितना बड़ा करेंगे तो 1 कोरोना वायरस का साइज एक स्मार्टफोन के बराबर होगा। तो आप सोच सकते हैं कि एक 1 बिलियन ऑफ ए मीटर कितना छोटा हो सकता है, जो हम नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। तो ये हमको समझना बहुत जरूरी है। तभी हमें मास्क लगाने की बात की जा रही है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है और बहुत सारी बातें आप पिछले 8 महीने से सुनते आए। तो आई एम नॉट गोइंग टू लेक्चर यू ऑन साइंस एंड ऑल। तो आप साबुन से हाथ धोने की बात की जाती है, क्योंकि ये जो इसकी लिपिड की लेयर है, इसका जो आरएनए है, प्रोटीन है, उसको ये तोड़ देता है साबुन और पानी, और वो वायरस जो है वो पानी में बह जाता है। हमको बहुत सारे क्लेम मिलते हैं कि एवरीवन क्लेम्स टू नो, everyone for easy quick fix solution to remove virus, simple home remedies
टू क्योर इन्फेक्शन, वायरस बिहेवियर की बात करते हैं, तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात होती है, और बहुत सारी बातें होती हैं। ओरिजिन ऑफ वायरस की बात होती है, ट्रीटमेंट प्लान की बात होती है, और रिलेटेड टू कोविड-19 वेदर इट इज एन एक्सप्लोजन ऑफ इंफॉर्मेशन एपिडेमिक और फेक न्यूज अगेंस्ट विच आर फाइटिंग। तो इस समय जो पैंडेमिक के संग एक इन्फोडेमिक्स भी चल रहा है, जो डीजी हैं डब्ल्यूएचओ के, उन्होंने भी इसको इन्फोडेमिक्स बोला है। तो रियल प्रॉब्लम विद द फाल्स न्यूज क्या है? इट इज नॉट ओनली दैट फेक न्यूज मेक्स पीपल बिलीव false things, rather it reduces the chances of people accepting the true information. आपको एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज मिल गया कि सर गंगाराम हॉस्पिटल का लेटर हेड, और उसमें लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला, ये दवाइयां खाएंगे, आप गार्गिल्स करेंगे, आप ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो आपको कोविड नहीं होगा। आपने तो देखा कि भाई ये लेटर हेड है, उसमें डॉक्टर का सिग्नेचर है, लेकिन उसके दूसरे दिन गंगाराम हॉस्पिटल के पीआरओ ने बोला हमारा इस लेटर से कोई कनेक्शन नहीं है, ये हमारे लेटर हेड का गलत इस्तेमाल किया गया है, डॉक्टर का सिग्नेचर भी कहीं से कॉपी पेस्ट किया गया है। तो ये हम जानने की कोशिश नहीं करते, और हम उस लेटर हेड पे या आयुष मिनिस्ट्री के लोगो पे, व्हाट्सएप के मैसेज पे ट्रस्ट करने लगते हैं। ओ ऐसा हो रहा है, और हम उस पर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। तो ये हमें और हम सच्चाई जानने से बहुत दूर चले जाते हैं, क्योंकि हमें उस पर हम भरोसा कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। जो र्यूमर है वो कैसे फैलता है? Aired online, panic, anxiety, misleading information, people's reaction to misleading information, damage to society. अब ये इंफॉर्मेशन मिसइंफॉर्मेशन हो सकती है या डिसइंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ये कैसे होती है, क्या होती है, कब होती है, क्यों होती है और कहाँ होती है, वो हम जानेंगे। ये जो गलत प्रस्तुतिकरण है, यानी मिस रिप्रेजेंटेशन है, मिसलीडिंग है, राइट? हम एग्जाम्पल से समझेंगे इसको कि व्हाट इज मिस रिप्रेजेंटेशन, व्हाट इज मिसलीडिंग, व्हाट इज रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट, factually incorrect, manipulated content, unscientific claims, and outright lies, right? तो ये सारा डिसइंफॉर्मेशन के तरीके, बहुत सारे टाइप्स हैं जो बहुत कुछ दंगा कराते हैं, मॉब लिंचिंग कराते हैं। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं और ये सब चीजें हो रही हैं। मिस्टर एडोना इन्फोटेक कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। ईटिंग अनियन कैन प्रिवेंट कोरोना वायरस। ये एक तरह का मिसलीडिंग, भ्रामक इंफॉर्मेशन है, गलत है। उसी तरह से एस्पिरिन कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है, दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। उसी तरह से गाय का गोबर एंड गोमूत्र कोरोना वायरस को ठीक कर सकता है, दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। मांस का सेवन से कोविड होता है, मिसलीडिंग। और ये मैप दिखा दिया है आपने कि वुहान से, ये एयर मैप है, इस तरह से फ्लाइट्स गए और पूरी दुनिया में बीमारी फैली, दिस इज मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इमेज। आप गार्गल करेंगे तो संक्रमण नहीं होगा, मिसलीडिंग। सोना बाद से आपको संक्रमण नहीं होगा या इलाज करेगा, दिस इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। ये कोरोना वायरस का जो वहां पर फ्यूनरल हुआ उसमें सल्फर डाइऑक्साइड फैला, दिस इज मैनिपुलेटेड कंटेंट, उससे छेड़छाड़ किया गया है उस कंटेंट से। डेटॉल ने बोला है कि हम इसको मारने में सक्षम है, दिस इज मिसलीडिंग। तो अगर इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी है कि वो शायद सच है, तो वो शायद सच नहीं है। अगर आपको सच लग रही है, वो शायद सच नहीं है। तो आप क्या आपका जो फीडबैक होगा, अगर आपको ऐसा चीजें मिलती हैं, तो आप सबसे पहले क्या करें, आप उसको कोविड-19 का जो संक्रमण है उसके रोकने के आसान तरीके आपको पता चलते हैं। तो या रीड सम वेरी अनोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ कंडीशन दैट इज कॉज्ड बाय कोरोना। आप कंफर्म करें और क्रॉस चेक करें, कंफर्म करें। तो इसको जो तरीके हैं, फोटो वेरिफिकेशन, वीडियो वेरिफिकेशन, टेक्स्ट के बारे में आप चेक कर सकते हैं। साउंड को पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई साउंड ऐसा आता है जो आप उसको ध्यान से सुनते हैं कि ये साउंड कोई अगर भोजपुरी बोलने वाला है, तो वो जो भोजपुरी बोलेगा तो उसका एक जो साउंड है एक अलग तरीके का आपको सुनाई पड़ेगा। कोई उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया गया है, या उसका कहीं ना कहीं आपको, लेकिन बहुत मुश्किल है, ऐसा कोई टूल हमारे पास नहीं है कि हम साउंड को या उसकी वॉइस को पकड़ पाए कि ये सही है कि गलत है। कोई भी मॉड्यूलेशन करके या किसी भी तरीके से किसी की वॉइस में बोल सकता है। तो लेकिन फोटो वीडियो को एटलीस्ट हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे?
how to verify a photo. It is very easy. Google reverse image search, ये कैसे होता है इसको मैं डेमोन्स्ट्रेट भी करूंगा, आपको दिखाऊंगा। गूगल में हम जब जाते हैं तो एक कैमरा हमको बना हुआ नजर आता है, और उस कैमरे में हम जब क्लिक करते हैं तो हम पहुंचते हैं गूगल रिवर्स इमेज सर्च में। उसमें दो ऑप्शन होते हैं, पेस्ट इमेज यूआरएल एंड अपलोड एन इमेज। तो हम, अगर हमारे पास यूआरएल है तो हम यूआरएल को डालते हैं, नहीं तो हम इमेज को अपलोड करते हैं। तो आई हैव सम इमेजेस फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, तो आई विल फर्स्ट चेक हाउ वी कैन यूज गूगल रिवर्स इमेज सर्च फॉर फोटो वेरिफिकेशन। एंड गूगल रिवर्स इमेज सर्च इज आल्सो हेल्पफुल फॉर योर वीडियो वेरिफिकेशन। वीडियो को वेरीफाई करते हैं, उसके लिए हम कैसे करेंगे वो भी आपको मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। एंड यू कैन टेल एंड इफ एन इमेज इज ओल्ड, इफ इट इज appeared earlier on the web, you can tell what is किस context में इसको इस्तेमाल हुआ है, इसका source क्या है, ये सारी चीजें आप पता लगा सकते हैं। And these are Chrome extension, you can add these photo verification search engines to your Chrome। आप Google में डालेंगे, आप search by image Chrome extension, आप इसको डायरेक्ट अपने Chrome में ऐड कर सकते हैं। And it will help you to search online images। फेसबुक, इंस्टाग्राम या जो भी आप अपने लैपटॉप में ऑनलाइन इमेजेस देख रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो यू कैन जस्ट राइट क्लिक से आप उसको रिवर्स इमेज सर्च कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ रेव आई रिवर्स इमेज सर्च इज अनदर सर्च इंजन। आप इसको भी नाम नोट कर सकते हैं, लेकिन आपका काम गूगल से हो जाता है। गूगल रिवर्स इमेज सर्च मोर देन सफिशिएंट, एंड दिस इज रेव आई रिवर्स इमेज सर्च। उसके बाद अब जैसे ये फोटो को मैंने आपके लिए सेव करके रखा है अपने डेस्कटॉप में, लैपटॉप में, तो ये इटालियन मैन हु हैज लॉस्ट हिज एंटायर फैमिली टू कोरोना वायरस फाइनली कमिट सुसाइड एट द टॉप ऑफ होटल। ये इटली से खबर आई है और लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स दिए हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये खबर गई है। तो मैंने क्या किया, आई जस्ट क्रॉप्ड द इमेज जिसमें ये एक व्यक्ति ऊपर होटल के खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, उसको मैंने अलग करके सेव किया हुआ है। उसको मैंने जब सर्च किया Google reverse image search, we get result that match the images, और उसको हमको पता चला, आप देख रहे होंगे कि man jumps to his death from the top of hotel Valencia Center in Spain। ये होटल स्पेन में है, इटली से इसका कोई लेना देना नहीं है, और कोविड से पहले का ये फोटो है, राइट। तो आपको दिसंबर 27, 2019 का फोटो है, उस समय तक इटली में कोविड नहीं फैला था। तो ये आपने देखा कि आपका गूगल रिवर्स इमेज सर्च तुरंत आपको बता देगा ये फोटो आपका है, कहाँ का है। तो the post is dated 27 December 2019, long before the coronavirus pandemic arrived in Italy. That's why photo and tweets are fake. How to verify video? वीडियो के वेरिफिकेशन के लिए देयर इज नो कोई ऐसा बहुत बड़ा टूल नहीं है हमारे पास, बट वी हैव YouTube डाटा व्यूअर। YouTube डाटा व्यूअर इज वर्किंग फॉर YouTube वीडियोस ओनली। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ दिस डाटा व्यूअर, एंड दिस डाटा व्यूअर में आप जब URL डालेंगे तो ये ऑनलाइन काम करता है। यू विल गेट दी थंबनेल्स, यू नो, की फ्रेम्स, स्टिल फोटोग्राफ, और उसका डेट ऑफ पोस्टिंग, डेट एंड टाइम, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आपको जो थंबनेल्स मिलेंगे, की फ्रेम मिलेंगे, उस पर राइट क्लिक करके यू कैन डायरेक्टली अप्लाई गूगल रिवर्स इमेज सर्च। तो ये YouTube वीडियो में आपको स्टिल फ्रेम आते हैं, और वो गूगल रिवर्स इमेज सर्च लगाने से यू विल क्रॉस चेक द वीडियो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स। ये कट पेस्ट है, कॉपी, कहीं किसी ने उसको डब किया है, कहीं पे कुछ उसको कुछ फ्रेम ऐड किया है, लाइक दैट। दिस इज वेरी पावरफुल, यू नो, स्ट्रॉन्ग सर्च इंजन। इनविट, आप इंटरनेट पर डालेंगे, गूगल करेंगे इनविट EU Chrome डाउनलोड, एंड यू कैन ऐड टू योर Chrome। आप इसको Chrome से ऐड करेंगे, और ये आपको दिस इज फेक वीडियो न्यूज डिबंकर बाय इनविट, जो कि आपको वीडियो का उसका लाइसेंस होल्डर कौन है, उसका कॉपीराइट किसके पास है, उसको कब पोस्ट किया गया, उसके भी स्टिल फ्रेम आते हैं इसमें, और स्टिल फ्रेम में आप डायरेक्ट गूगल रिवर्स इमेज सर्च लगा सकते हैं। तो गूगल रिवर्स इमेज सर्च आपको क्या करता है, थ्रू YouTube डाटा व्यूअर, थ्रू इनविट EU Chrome, मैंने इसको डाउनलोड करके अपने Chrome में ऐड किया हुआ है। आई विल डेमोन्स्ट्रेट कि ये कैसे काम करता है, राइट। तो ये कुछ टूल्स का इंफॉर्मेशन थी। तो अब मैं आपको एक एक करके इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि हाउ इट वर्क्स, राइट। तो इसके बाद जैसे कि ये फोटो है, मुस्लिम licking utensils to spread COVID-19।
ये फोटो बहुत सारा जो निजामुद्दीन में जो मदरसा है वहां से ये वायरल हुआ था। अब ये पता चला हमको कि मुस्लिम लिकिंग स्पून्स एंड प्लेट्स कीवर्ड की सर्च से हमने सर्च किया तो हमको लिंक मिला कि वीडियो 31 जुलाई 2018 को अपलोड किया गया है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा है कि ये दाऊदी बोहरा समुदाय के लोग हैं और अपने धर्म गुरु की आदेश के हिसाब से ये खाने की बेकदरी नहीं करते, यानी जो भी झूठन बचती है उसको ये खा लेते हैं ताकि इनके मस्जिद से या उनके जो भी उनका होली प्लेस है वहां से कोई भी फूड पार्टिकल बाहर ना जाने पाए। So the video is Bohra community. People of Dawoodi Bohra religion do not waste food. That is why after eating, he lick all the utensils such as plate, spoon, and bowl to ensure no food wastage, and then wash the vessels. तो ये इसका डिस्क्रिप्शन था। उसी के बाद एक और बहुत अच्छा टूल है वॉच फ्रेम बाय फ्रेम। वॉच फ्रेम बाय फ्रेम ऑनलाइन काम करता है और ऑनलाइन काम करता है। इसमें आप यूआरएल डालते हैं और फ्रेम को सर्च करते हैं, फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं कि एट वन क्लिक आप एक ऑडियो विजुअल मूविंग पिक्चर के एक क्लिक में कितने फ्रेम आगे बढ़ाना चाहते हैं। यू नो कि हमारा जो ऑडियो विजुअल हम कैप्चर करते हैं वीडियो, उसमें एक सेकेंड में 24 फ्रेम होते हैं और हम जितने भी फ्रेम यहाँ पर डालेंगे 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 4 फ्रेम, तो एक क्लिक पे ये उतने ही फ्रेम को आगे बढ़ाएगा। And this tool is very much helpful to detect deep fake videos, जहाँ पर छोटे से कहीं पे एक फ्रेम को चेंज किया है, कहीं पे कुछ पोर्शन को चेंज किया है, रिप्लेस किया है, कुछ ऑडियो को डब कर दिया है, राइट? तो वहां पर ये आपकी हेल्प करता है टू फाइंड दैट चेंजेस। तो इसमें आप ये पता लगा सकते हैं। तो अभी मैं ये इसको स्क्रीन को स्टॉप करूंगा यहाँ पे पीपीटी को और आपको मैं डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। Now I am demonstrating Google reverse image search with my Google, right? So now I am going to my just a minute. आपको Google का स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यहाँ पर मैं इमेजेस में गया, इमेजेस में कैमरे का आइकन बना हुआ नजर आ रहा है और इमेजेस में ये जो कैमरे का आइकन नजर बना आ रहा है, यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, पेस्ट इमेज यूआरएल और अपलोड एन इमेज। तो हम अपलोड एन इमेज में मेरे पास एक फोटो है जो मैंने आपको दिखाया था, जो सो कॉल्ड इटली का एक होटल से उसने सुसाइड कर लिया, राइट, ड्यू टू उसका फैमिली कोविड से खत्म हो गया। तो वो इमेज को मैं यहाँ पर अपलोड करूंगा, राइट? अपलोड एन इमेज, चूज फाइल, डेमो पिक्स इटली के नाम से सेव है मेरे पास। ओपन कर दिया मैंने, ओपन पे क्लिक करते ही अपलोडिंग करता है फाइल को और ये तुरंत इसने दिखा दिया है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारा हेल्प मिल जाता है। लॉट ऑफ फैक्ट चेकर्स ऑलरेडी डन दिस फैक्ट चेकिंग ऑफ दिस इमेज। तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बूम लाइव है, factly.in है, ये बोल रहे हैं दिस इज ओल्ड एंड अनरिलेटेड सुसाइड फोटो, राइट? फिर आप देखेंगे मैन कमिटेड सुसाइड आफ्टर लूजिंग हिज एंटायर फैमिली, कोरोना वायरस चेक फॉर स्पैम। तो हम किसी में भी जाके देखेंगे और हमको बहुत बार ये भी होता है कि हम कोई ऐसा इमेज डालें जो लोगों ने फैक्ट चेक नहीं किया है, तो हमको ओरिजिनल फोटो भी मिल जाता है। तो उसको करने के लिए हम एक और काम करते हैं, हम टूल में जाते हैं और टूल में जाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर टाइम में जाते हैं, टूल में गए, टाइम में हम कस्टम रेंज करते हैं। कस्टम रेंज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर 01, 01, 2019 एंड 2 में 31, 12, 2019, राइट? 31 दिसंबर में हमने इसको टाइम को लॉक कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ओ सॉरी, ये 21 आ गया, ये कभी कभी मुश्किल करता है। यहाँ पर इसको हमको (31), राइट? अब ये हमने एक साल को यहाँ पर कस्टम रेंज में इसको लॉक कर दिया और अब हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो हमको 2019 का ही वीडियो मिलेगा, सिर्फ 2 वीडियोस, राइट? और आप देख सकते हैं
ये साफ साफ लिखा है दिस होटल वेलेंसिया सेंटर इज इन स्पेन, राइट? ये इटली का नहीं है। यानी ये क्लियर हो गया कि ये जो वीडियो है वो फेक न्यूज, गलत मिस रिप्रेजेंटेशन किया गया है। इट वाज मिस रिप्रेजेंटेड विद इटली का एक फेक न्यूज, उस फोटो का या वीडियो का गलत इस्तेमाल हुआ है। आपको एकदम यहाँ पर क्लियर हो गया। आपके टूल्स में you can customize your range, you can select any year to save your time. Suppose आपको कोई लेक्चर किसी पॉलिटिशियन का सर्च करना है, लास्ट 5 years, लास्ट 2 years, राइट, 97 to 98, 98 to 2005, तो वो आप अपने हिसाब से रेंज को सेट कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं, और आपको ये वही कस्टम रेंज का गूगल सर्च आपको करके देगा। अब हम जाते हैं YouTube में, और YouTube से हम एक फेक वीडियो को निकालते हैं जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन। तो YouTube के लिए हम यहाँ पर YouTube डालेंगे, और YouTube खोलने के बाद हम एक वीडियो को आपको जस्ट फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, एक जो मुझे पता है कि दैट वीडियो इज फेक, राइट? ग्रीन पीस कलरिंग। तो ये वीडियो है जो ग्रीन पीस कलरिंग का है, ये वाला। ये आपका व्हाट्सएप पे आया होगा 2 साल पहले। इसमें ये बोल रहा है कि कलरिंग ग्रीन पीस इन इंडिया विद टॉक्सिक कलरिंग एजेंट्स, यानी ये ग्रीन पीस को टॉक्सिक कलरिंग एजेंट से कलर कर रहा है और हमें डिजीज हो सकता है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो हम इसको लिंक को यहां से कॉपी करेंगे, एंड नाउ विल मूव टू इनविट। इनविट ये मेरे पास क्रोम में मैंने ऐड किया हुआ है, एंड ओपन इनविट। ओपन इनविट में जाएंगे तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इसमें कॉपीराइट, वीडियो राइट का ऑप्शन आता है, की फ्रेम, थंबनेल्स, ट्विटर सर्च, मैग्नीफायर एंड सो ऑन। यू कैन, आप इसको आराम से करके देखेंगे। तो हम एनालिसिस में गए, कहाँ गए? इनविट में एनालिसिस, वीडियो एनालिसिस, और इसको हमने सबमिट किया उसके लिंक को। तो जो हमको दिखाई पड़ेगा, अब देखिए उस वीडियो का पूरा डिस्क्रिप्शन खुला, और यहां पर आया लाइसेंस कंटेंट फॉल्स, राइट? और उसके नीचे देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप के बाद जो डी लिखा हुआ है वो टी स्मॉल लेटर में है, फुल स्टॉप से पहले स्पेस भी है। तो ये सारा बहुत सारा आपको इसमें चीजें मिलेंगी जो आपको देखेंगे। और लाइसेंस कंटेंट फॉल्स है, यानी आपको एक ये हमें उम्मीद जगी कि ये गलत है। और इस फोटो पे हम किसी भी एक अलग अलग फ्रेम पे यहाँ पे राइट क्लिक किया मैंने, तो फेक न्यूज डिबंकर बाय इनविट, और यहाँ पर हमने इमेज मैग्नीफायर, इमेज फॉरेंसिक, रिवर्स इमेज सर्च बाय गूगल, राइट? Yandex, Bing, TinEye, ये सारे सर्च इंजन हैं जो यहाँ पर आपको प्रोवाइड होते हैं। तो हमने गूगल पे सर्च पे क्लिक किया, रिवर्स इमेज सर्च बाय गूगल। तो हमको पता चला कि ये वीडियो, जस्ट ए मिनट, अडल्ट्रेशन ऑफ ग्रीन, नो दिस वीडियो डजंट शो, लेकिन ये कुछ और बोल रहा है। हम और भी आगे बढ़ेंगे, हम दूसरे पेज पे भी देखेंगे। तो 1 या 2 पेजेस पे हमको कहीं ना कहीं, अब देखिए हमको मिल गया, ये फंजीसाइडल कोटिंग है। बेसिकली ये मटर में अडल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई भी कलर नहीं मिला रहे हैं। ये क्या हो रहा है? फंजीसाइडल कोटिंग। हमारा जो गेहूं का बीज होता है या सोयाबीन का सीड होता है, to improve the shelf life of wheat or soybean and their various seeds, fungicidal coating is being done in the video by the farmers to improve the seed and its shelf life, to उसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन या उसको कीड़ा लगने से बचाने के लिए। तो दैट्स इट। तो इतना ही हो रहा है और उसमें कोई भी बात नहीं है। उसी तरह से हमारे पास एक और वीडियो है, वॉच फ्रेम बाय फ्रेम। वॉच फ्रेम बाय फ्रेम में हम ऑनलाइन जाते हैं, और ऑनलाइन जाने के बाद हम वही यूआरएल यहाँ भी टाइप करते हैं फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस।
वॉच वीडियो में क्लिक करते हैं, वॉच फ्रेम बाय फ्रेम में जाने के बाद, और उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं 1 फ्रेम, 2 फ्रेम, 4 फ्रेम। मान लीजिए हमने 4 फ्रेम सेलेक्ट किया, राइट। फिर हम यहाँ जितना भी, जस्ट अ मिनट, फिर हम एट आवर 1 क्लिक सॉरी, मैंने गलत जगह क्लिक किया, यहाँ को क्लिक नहीं करना है, यू हैव टू क्लिक हियर, राइट। आप जो भी क्लिक करेंगे, एक क्लिक में आपका 4 फ्रेम आगे बढ़ेगा। अब आप यहाँ पर 8 फ्रेम कर सकते हैं, तो ये एक क्लिक में 8 फ्रेम आगे बढ़ेगा। आप यहाँ पर 1 फ्रेम कर सकते हैं, तो ये एक क्लिक में 1 फ्रेम आगे बढ़ेगा, राइट। तो ऐसे एक एक फ्रेम जहां भी वो इंसर्ट किया है, कोई भी चेंजेस किया है, वो आपको एक एक फ्रेम में दिख जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस इसमें चाहिए, राइट। तो ये तो था हमारा इनका डेमोन्स्ट्रेशन। नाउ आई वुड लाइक टू आंसर योर क्वेश्चन। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो मोस्ट वेलकम। तो जो मैंने गूगल रिवर्स इमेज सर्च के बारे में आपको बताया, आपको वॉच फ्रेम बाय फ्रेम, यूट्यूब डाटा व्यूअर, इनबिट जो सर्च इंजन्स हैं, उसमें यू कैन क्रॉस चेक, वेरीफाई फोटो, वीडियो, आप उनको चेक कर सकते हैं, और ये पता लगा सकते हैं ये ओरिजिनल वीडियो या फोटो कहाँ से आया है, इसका सोर्स क्या है, राइट। आप टूल में जाके टाइम को आपको सेट करना है, और टाइम को सेट करने के बाद यू कैन इजिली, आपने जो टाइम सेट किया है, आपको उसी टाइम का वो वीडियो या फोटो दिखाई देगा। नाउ द टाइम फॉर योर क्वेश्चंस, प्लीज। सर हमारे पास 2 सवाल हैं अभी। एक तो है, ऑल्दो सर हम लास्ट सेशन के एंड में भी ले सकते हैं, आप जिस चीज से कंफर्टेबल हैं हम वैसे कर सकते हैं, अगर आप अभी। नाउ माय सेशन ये एंड है, मैं अपना अच्छा, ओके सर। सो सर एक क्वेश्चन है शाश्वत गुप्ता का कि व्हाट डू यू मीन बाय डीप फेक? पार्डन? व्हाट डू यू, शाश्वत गुप्ता का क्वेश्चन है सर, दैट व्हाट डू यू मीन बाय डीप फेक? देखिए, डीप फेक एक टर्म है जो वीडियो में बहुत कहीं छोटा सा ऐसा चेंज होगा जो हमको दिखाई नहीं देता, उसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप इसको गूगल करेंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, राइट। लेकिन आपका जो वॉच फ्रेम बाय फ्रेम है, जब आप एक एक फ्रेम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं वो फ्रेम से ही छेड़छाड़ होती है वीडियो में। या तो वॉइस चेंज होगा, वॉइस लिपसिंग आप देख लेंगे कि उसका लिप्स कहीं और जा रहा है, वॉइस कहीं और जा रहा है, राइट। और कहीं भी छोटा सा एक फ्रेम भी चेंज किया है अगर, तो वो भी आपको वॉच फ्रेम बाय फ्रेम में पकड़ में आ जाएगा। तो इस तरह का जो आप अगर आप विदाउट एनी टूल देखेंगे, विदाउट वॉच फ्रेम बाय फ्रेम देखेंगे, तो आपको शायद वो पकड़ में दिखाई नहीं देगा, आपको पकड़ में नहीं आ पाएगा। सर एक और क्वेश्चन है हमारी स्टूडेंट है प्राची शर्मा का कि हाउ कैन वी स्टॉप अदर्स फ्रॉम स्प्रेडिंग फेक न्यूज? We can stop if the information is wrong. How can we help others with the truth? देखिए, ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे और आपके ऊपर। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज मिलता है जो आपको लगता है कि ये फेक है या गलत हो सकता है, ये मिस कम्युनिकेशन है, डिसकम्युनिकेशन है, मैनिपुलेटेड है, जो मैंने आपको बताया है, जो टाइप ऑफ मिस एंड डिसइंफॉर्मेशन, तो आपका ये फर्ज है कि आप उसको सबसे पहले डिलीट करें, और अपने उस फ्रेंड को, उस अपने स्टाफ मेंबर को, अपने उस रिलेटिव को फोन करें, उसको बताएं कि काइंडली डोंट स्प्रेड। आप उसको वहीं पे खत्म करें और उसको बताएं कि ये, आप उसको क्रॉस चेक करें, आप वेरीफाई करें। और जहां से अब फॉर एग्जांपल मुझे एक फेक वीडियो मेरे पास आया, एंड इट वाज फॉरवर्डेड बाय ए फैकल्टी मेंबर ऑफ एनी साइंस इंस्टीट्यूट। तो वो एक सीनियर मेंबर हैं, टीचर हैं, उन्होंने वो मुझे भेजा, जिसमें बोला है कि यू काइंडली इग्नोर और डोंट एक्सेप्ट द कॉल फ्रॉम दिस पर्टिकुलर 9-digit मोबाइल नंबर। अगर आप ये कॉल उठा लेंगे तो एक विस्फोट होगा मोबाइल में, और आप वहीं पर ऑन दी स्पॉट आपका डेथ भी हो सकता है। तो मैंने उसको चेक किया तो पता चला कि वो एक फेक वीडियो है, और ऐसा कोई भी 9 digit का मोबाइल नंबर नहीं होता। मोबाइल नंबर हमेशा 10 digit के होते हैं। और अगर कोई भी मोबाइल नंबर से आपको कॉल आता है, इट में बी 7 digit, 8 digit, एनी अदर डिजिट, तो उसमें कोई ऐसा विस्फोट का कोई ऐसा खतरा अभी तक तो
सामने हमारे नहीं आया है कि ऐसा कोई प्लान कर लिया है कि ऐसा होगा। तो ये बेकार की बात है और ये सामने सामने हमें दिखाई दे गया कि ये वीडियो फेक है। और जो मैंने उसको गूगल में चेक किया और उन मैडम को वो लिंक भेजा, तब उनको वो मैंने गलत किया, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। तो आपको हमेशा जो प्राइमरी सोर्स है, प्राइमरी सोर्स क्या है इंफॉर्मेशन का, जो सबसे बड़ी बात है मीडिया लिटरेसी की, हम जो टीवी में देखते हैं, हम जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, दे ऑल आर सेकेंडरी सोर्सेज, टर्शरी सोर्सेज। So we have to verify our information, our fact from primary sources. Primary source क्या हो सकते हैं? Research paper published in a research journal. It can be website of any government or any particular institute जो उस पर काम कर रहा है. It can be WHO. It can be United Nations. It can be Ministry of Health and Family Welfare. It can be कोविड ज्ञान के नाम से ब्यूटीफुल वेबसाइट कोविड ज्ञान, आप लोग नोट करें, कोविड ज्ञान आप देखेंगे तो कोविड में बहुत सारा ज्ञान आपका बढ़ेगा। इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड, इंडियन साइंटिस्ट रिस्पॉन्स टू कोविड, इसको आप देखेंगे तो आपको बहुत सारा इंडियन साइंटिस्ट का एक नेटवर्क है। देयर आर मोर देन 500 इंडियन साइंटिस्ट, दे आर writing, they are communicating, they are podcasting, they are broadcasting, they are multicasting variety of information on COVID and related issues on the web portal which knows as Indian Scientist Response to COVID. You please go visit and बहुत अच्छी बात यह है कि they are disseminating the information in various Indian languages including Bengali, Marathi, Tamil, Telugu, Gujarati, Hindi, English, and variety of languages. तो आपको अपनी भाषा में वो चीजें मिलेंगी and they are disseminating the information not only for student and teachers but health workers, policy makers, scientists and student media persons, teachers and all. You please get benefit of all these information available on these COVID Gyan and these portals. And और सबसे एक और यहाँ पर जो मैं बात बताऊंगा, जो मीडिया लिटरेसी का हम बात कर रहे हैं, तो हम जो भी चैनल देखते हैं, हम जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से वो रिपोर्टर, वो एडिटर आपके पास लाता है। तो हो सकता है कि उसकी जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी ना हो, वो कहीं ना कहीं अधूरी हो और उसने वो न्यूज़ पब्लिश कर दी हो। तो यहाँ पर मैं किसी की क्रेडिबिलिटी पर या किसी का वर्क कल्चर पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन ऐसा होता है और हो सकता है। सोशल मीडिया में ऐसा खूब होता है और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ऐसा हो सकता है और कभी होता भी है। अब गणेशा ड्रिंकिंग मिल्क, ये जो न्यूज है, ये मैंने कहाँ सुनी? बीबीसी ब्रॉडकास्ट द न्यूज जो 1995 में या उसके बाद। और अभी बहुत सारे चैनल आज की तारीख में भी दिखाते हैं कि साईं बाबा की मंदिर में वो दीवार पर उनकी जो काई जमती है उसमें उनकी फोटो नजर आती है। आप मथुरा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे तो वहां पर टाइल्स रखे हुए हैं, टाइल्स में कुछ ऐसा इमेज है जिसमें कृष्ण भगवान का तस्वीर नजर आती है। तो अगर हम आस्था के चश्मे से कहीं भी कुछ देखेंगे तो हमें किसी भी पत्थर पर या पहाड़ पर कोई ना कोई भगवान की फोटो नजर आ जाएगी। हम अपने पुराने घर में जाएं जहां हमारे दादी दादा रहते थे, और हम अब मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, लेकिन अगर हम बनारस, कानपुर या पटना या भोपाल या किसी विलेज में अपने पुराने घर में, होम टाउन में जाते हैं जहां पर पिछले 20 साल से रंगाई पुताई नहीं हुई है, वहां पर बहुत सारा फंगस, बहुत सारा दीवार खराब हो जाती है ना, तो हम उसको भी गौर से देखेंगे तो हमको बहुत सारा भगवान का और बहुत सारा चीजों का फोटो नजर आएगा। तो यहाँ पर हमें उससे बचने की जरूरत है और हमको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पढ़ने की, उस पर ट्रस्ट करने की और उसका डिसेमिनेशन की जरूरत है। यहाँ पर साइंस कम्युनिकेशन का रोल होता है क्योंकि ऑल स्टूडेंट्स आर रीडिंग साइंस, टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी, तो हमको उसको पढ़ना है और उसको समझना है और उसको डिसेमिनेट करना है, कम्युनिकेट करना है। तो जो भी मीडिया चैनल है, जो भी अखबार है, जो न्यूज़पेपर है, चैनल है, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी थ्योरी पे काम करता है, उसका कोई ना कोई एजेंडा हो सकता है हो, तो आपको उसको समझने की जरूरत है। और जो मीडिया में आपने सुना वो ब्रह्म वाक्य नहीं हो सकता, वो हो सकता है कि सच हो, वो फैक्ट हो,
लेकिन हो सकता है कि उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती की हो गई हो, क्योंकि रिपोर्टर भी आपकी तरह ह्यूमन बीइंग है। कभी कभी किसी न्यूज एजेंसी से गलती होती है। एक बार एक न्यूज एजेंसी से गलती हो गई, और हुआ क्या कि वो न्यूज एजेंसी, मैं किसी एजेंसी का यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन वो एजेंसी हमारे जितना भी न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल है, सब में अपना न्यूज को सप्लाई करता है। अब एजेंसी में अगर गलती हो जाती है, एक बार गलती हुई 2 साल पहले, मुंबई पूना एक्सप्रेस वे पर ओले गिरे। मुंबई पूना एक्सप्रेस वे पर ओले गिरे, बहुत तेज बारिश हुई और ओले भी गिरे, और वो वीडियो वाज शेयर्ड बाय maximum news channels and newspapers, and that news was published by all the newspapers and all the TV channels ने उसको ब्रॉडकास्ट किया। मैंने भी देखा, मुंबई कर ने भी देखा, मुंबई के लोगों ने भी देखा कि मुंबई पूना एक्सप्रेस वे पर ओले गिरे। उसके बाद when we verified the video, then we came to know that video was originally from Turkey, and the vehicle was जो ड्राइव बाय द लेफ्ट हैंड साइड। हम जो यहाँ पर व्हीकल चलाते हैं इंडिया में, हम राइट हैंड साइड में हमारा स्टीयरिंग होता है। उस वीडियो में व्हीकल का स्टीयरिंग लेफ्ट हैंड साइड में था, लेफ्ट हैंड ड्रिवन व्हीकल था वो, और उसका जो नंबर प्लेट था वो टर्की का था। वो नंबर प्लेट इंडिया का नहीं था, मुंबई का नहीं था, महाराष्ट्र का नहीं था। तो हमको ये पता चल गया कि ये वीडियो टर्की का है। फिर ये पता लगा कि भाई वो न्यूज एजेंसी का रिपोर्टर ने गलती से, उसको जो वीडियो कहीं से मिला होगा, वो मुंबई बोल के मिला, और वो उसने सारे चैनल्स में, सारे मीडिया में फॉरवर्ड कर दिया। तो बहुत बहुत कभी कभी रिस्क हो जाता है। और किसी की मॉब लिंचिंग तो अभी हमको दिखाई दे रही है सोशल मीडिया के दौर में। जब व्हाट्सएप नहीं था तब भी मॉब लिंचिंग होती थी, तब कम होती थी, अब ज्यादा हो रही है। अब मैं एक एग्जांपल देके अपनी बात खत्म करूंगा। आई थिंक इन 2008 अगर आप गूगल करेंगे, गर्ल कमिटेड सुसाइड प्लस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर प्लस BBC, then you'll find lot of TV channels, lot of news clippings जो उस बच्चे ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि हमारे चैनल ने, हमारे अखबारों ने जो न्यूज पब्लिश किया था कि लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, जो एक मेगा एक्सपेरिमेंट हो रहा है नियर जेनेवा, उसमें ब्लैक होल बनेगा और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। एंड दिस लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर एक्सपेरिमेंट इज शेड्यूल्ड टू ट्रेस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द यूनिवर्स। जब ये यूनिवर्स बना तो सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से भी पहले। तो वो टीनियस और जो फाइनेस्ट पार्टिकल की जो खोज हो रही है, उसके लिए वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है नियर जेनेवा, एंड इट इज नोन एज लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर मेगा एक्सपेरिमेंट। एंड उसमें 200 Indian scientists and more than 25 Indian labs have been collaborated with that experiment. And some miscommunication happened to the press that black hole was will be created with the experiment, and this whole universe and earth will end. ये दुनिया खत्म हो जाएगी। And this miscommunication was published by various newspapers, including Hindi newspapers, and a girl of 16 years read the news and उसने सल्फास खाकर अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। तो इसलिए जरूरत है मीडिया लिटरेसी की कि हम अलर्ट रहें, और अगर हमें कुछ मिसकम्युनिकेशन मिलता है तो हम उसको सोर्स को चेक करें और उसको फर्दर कम्युनिकेशन होने से, फॉरवर्ड करने से रोकें। थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है हमारे पास अवनीश छाबड़ा का कि has any law been established by government against those who are the source of such misinformation and disinformation and spread fake videos and photos? Our state government, ये क्योंकि स्टेट का विषय है तो हमारे अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में
अलग अलग लॉ बना रहे हैं, उनको फोर्स में ला रहे हैं, और बिल्कुल ये अगेंस्ट लॉ है, ये क्राइम है। अगर हम इस तरह का कोई भी मिसकम्युनिकेशन या डिसकम्युनिकेशन या मैनिपुलेटेड कंटेंट या फेक न्यूज को हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये क्राइम डिक्लेयर हो चुका है और इसमें पूरा सजा का भी प्रावधान है। तो आप अलग अलग स्टेट का हिसाब से चीजें हो रही हैं, आप देख सकते हैं। आप साइबर सेल में इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, FIR लॉन्च कर सकते हैं। और सबसे अच्छा है कि आप शायद ऐसा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपकी जो व्हाट्सएप में आपको जनरली जो फॉरवर्डेड मैसेजेस मिलते हैं, वो जनरली फॉरवर्डेड होते हैं बाय योर फ्रेंड्स, बाय योर कम्युनिटी, बाय योर स्टाफ, बाय योर फैकल्टी और व्हाटएवर फैमिली मेंबर्स। तो आप उनके खिलाफ तो FIR नहीं करेंगे, नहीं कर सकते शायद। तो आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज आप ऐसा मत करिए, आप इसको रोकिए, ये गलत कर रहे हैं आप, ये क्राइम है। और आप जहां से भी ये फॉरवर्डेड मैसेज आपके पास आ रहा है, आप उनको मना करिए। तो ये मैसेज जब स्प्रेड होगा तो ये बात दूर तक जाएगी, तो और ये कहीं ना कहीं इसको हम रोक पाएंगे। तो इसमें बहुत जरूरत है उस मीडिया लिटरेसी की, उस मीडिया को समझने की, उस सोशल मीडिया को समझने की, उस मेन स्ट्रीम मीडिया को समझने की, कि जो जितना ये अच्छा है उतना ही ये हमारे लिए खराब और एक गैर जिम्मेदार साबित हो रहा है। तो हम अपनी जिम्मेदारी को समझें एज ए लर्नड सिटीजन, बिकॉज our fundamental duty as per our Constitution of India, it is fundamental duty of every Indian citizen to inculcate scientific temper, humanism, spirit of inquiry and reform under the Article 51AH. Right? So you please read your fundamental duties in your Constitution. You please purchase your copy of your Constitution of India and you read each and every page, जो आपको लिटरेट करेगा और आपको मीडिया को समझने में मदद करेगा। क्योंकि जो मीडिया कहता है उसको आपको समझना बहुत जरूरी है। उसमें वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी हेल्प करेंगे। तो आर्टिकल 51 कैपिटल A, देन स्मॉल A B C D E F G H, बहुत सारे हैं। उसमें से जो H है, जो ये कहता है कि साइंटिफिक टेम्पर को इनकलकेट करना, साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ाना इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको रोकना, इट इज योर फंडामेंटल ड्यूटी। अगर आपकी सोसाइटी में कोई गलत कर रहा है, वो चाहे मीडिया है या इंडिविजुअल है, वो सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कोई ना कोई ऐसा कर रहा है, वो गलत कर रहा है, उसको रोकिए, अपनी ड्यूटी को समझिए। ये बोलता है ये ड्यूटी कि आपका ड्यूटी है, आप वैज्ञानिक साइंटिफिक टेम्पर यानी वैज्ञानिक प्रवृत्ति, वैज्ञानिक साइंटिफिक जागरूकता बोलेंगे इसको, वैज्ञानिक सोच को हम अपने साथ लाएं, हम मानवतावाद को बढ़ाएं, हम सवाल जवाब पूछें, हम क्यूरियस हों, हर चीज का हम सवाल करें। राइट? तो जब हम ये सवाल करेंगे तो हमें जवाब भी मिलेंगे। हम ढूंढेंगे अपने प्राइमरी सोर्सेज से उनके जवाब, और जब हम जवाब ढूंढेंगे तो हम क्या होंगे? वेल इन्फॉर्म्ड। और हमारे डिसीजन कैसे होंगे? इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। और जब हम इन्फॉर्म होंगे तो हमारा बिहेवियर भी चेंज होगा। हमको पता चलेगा कि ये सही है और ये गलत है। तो हमारा जब डिसीजन और बिहेवियर चेंज होगा तो हमारे अंदर जो साइंटिफिक सोच है, साइंटिफिक टेम्पर है, वो अपने आप डेवलप होगा, अपने आप आगे बढ़ेगा। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इन सब चीजों को हम अपने साथ लाएंगे तो हम अपनी लाइफ को इनरिच करेंगे, हम अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएंगे, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे विद द फैक्चुअल थिंकिंग, इन्फॉर्म्ड थिंकिंग, साइंटिफिक थिंकिंग, जिसकी आज जरूरत है। क्योंकि देश में डायबिटीज के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं, और उनको नहीं पता और हमको नहीं पता कि हमारा जो फूड है, हमारा जो खाना है, अगर हम अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट खाते हैं, एक साइंटिफिक डाइट खाते हैं, साइंटिफिक डाइट भी बोल जाइए, बैलेंस डाइट है ना, अपने खाने को हम अगर तरीके से खाते हैं तो हमारा डायबिटीज की दवाई छूट जाएगी और हमारा शुगर लेवल ठीक हो जाएगा। हम ओवरवेट हैं क्योंकि हमारा खान पान हमको नहीं पता हम क्या खा लेते हैं, हम बस डस्टबिन समझ के भरते रहते हैं अपने अंदर ना। तो
अगर आप साइंटिफिक थिंकिंग रखते हैं, आप फैक्चुअली चीजों को कम्युनिकेट करते हैं और आप समझते हैं, तो आप बहुत सारी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं. Yes, sir. Sir, there's one last question by Shashwat Gupta, and he's saying, is reverse image search a sure way to spot fake news, or does it have room for error? देखिए, कोई भी चीज जादू की छड़ी नहीं है. हर एक चीज का अपना लिमिटेशन है. अगर मैंने एक अपने फेक वीडियो बनाया और फेक फोटो बनाया जो इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो गूगल रिवर्स इमेज सर्च आपकी हेल्प कहां से करेगा? लेकिन जनरली 99.9% होता यही है कि लोग जो गूगल पर कंटेंट अवेलेबल है उसी से छेड़छाड़ करते हैं और चीजों को आगे बढ़ाते हैं. फेक न्यूज वहीं से पैदा होती है और वहीं पर खत्म हो जाती है. तो वो आपका जो रिवर्स इमेज सर्च है, it is helpful for your to identify, to verify photo, video, fact. तो वो आपकी कहीं ना कहीं एक मदद करता है. पेशेंस आपको रखना है. यू हैव टू सर्च. आपको एक पेज पे, दो पेज पे, और आपको फोटो को कैसे आप सर्च कर रहे हैं. अब एक फोटो है गांधी विद दलाई लामा. गांधी विद दलाई लामा इज ए फेक. अब उसमें दलाई लामा, बच्चा दलाई लामा एंड महात्मा गांधी 1932 में लंदन गए थे, यूके गए थे. तो अब दलाई लामा ने एक बार बोला कि महात्मा गांधी मेरे सपने में आए थे. तो वहीं से किसी को ये दिमाग में सूझा कि वो बच्चा दलाई लामा को महात्मा गांधी के संग उन्होंने क्लब कर दिया और महात्मा गांधी में दलाई लामा को गूगल पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, और करोड़ ऑफ करोड़ आपको मिलेंगे, मल्टी मिलियन उसका शेयर मिलेंगे आपको. अब आप यहाँ पर सब्जेक्ट है आपका महात्मा गांधी, तो आपको महात्मा गांधी को क्रॉप करना होगा थ्रू स्निपिंग टूल. स्निपिंग टूल बहुत आसानी से काम करता है, आपके लैपटॉप में पाया जाता है. स्निपिंग टूल को खोलेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे तो योर माउस विल एक्ट एज कैंची, सीजर की तरह काम करेगा, और आप उसमें महात्मा गांधी को जो सब्जेक्ट है उसको अलग करेंगे और गूगल रिवर्स इमेज सर्च में उसको अपलोड करेंगे और तुरंत आपको महात्मा गांधी का अकेले का फोटो मिल जाएगा, जो कि पब्लिश्ड बाय द गार्जियन, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, यूके प्राइम मिनिस्टर ट्विटर हैंडल ने उसको पब्लिश किया था, शेयर किया था. तो ये सारी चीजें आपको तुरंत मिल जाएंगी. बट इफ यू सर्च द फोटो महात्मा गांधी विद दलाई लामा, then it is very difficult to search the original photo. So you please crop your photo, you please use the tool time वाला जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, you use that time वाला चीज, और आप फोटो को क्रॉप करें और सर्च करें. इमीडिएटली आपको गूगल बता देगा रिवर्स इमेज सर्च ये ओरिजिनल फोटो कब का है, कौन सा है, कहां का है. देयर आर सम गुड प्लेटफॉर्म्स जो कि जिनका काम 24 आवर्स है ये सर्च करना, फेक न्यूज को पता लगाना. क्या है वो? बूम, BOOM, बूम लाइव, बूम है. देन विश्वास न्यूज, विश्वासन्यूज.com. तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको फेक न्यूज को बताते हैं कि वो सर्च कैसे करते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं, उसके बारे में पूरा मेथड बताते हैं. आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं और इन टूल को प्रैक्टिस में ला सकते हैं. यू विल बी एबल टू ओरिएंट योरसेल्फ हाउ टू यूज, और इसको कैसे करना है. इट इज वेरी, बहुत आसान है, नथिंग, कोई मुश्किल नहीं है. Amrish sir, would you like to add some words, few words? अब मैं तो अपनी लर्निंग को बढ़ा रहा था निमिष जी को सुनने के बाद, because whenever you are listening to a learned person, you always add on to something to your existing knowledge. And I believe everybody, I mean, all those students who attended this session, they would have been benefited. As you said, Yashasika, earlier, we will try to hold many more such sessions because Nimiji is always there for spreading this kind of knowledge to all all those receivers who are keen to know all about these things. And this is the first step that we have taken by organizing this media literacy for students. So for school students only, we will be organizing more sessions. And in Adamas University also, as Professor Chaudhary has already committed, he will be arranging many such sessions for school students in Kolkata and other parts of West Bengal. So we'll try to
take this forward with the help of all those people who have knowledge and who are ready to impart that knowledge. So I'm really thankful to Nimish Kapoor ji for being with us in this session and adding to or value to this whole course. Yashasrika. Thank you, sir. Asha ma'am, your thoughts? really like to thank निमिष कपूर जी. इनफैक्ट मैं उस बात पर कायम हूँ जो मैंने शुरुआत में कही थी. जो आपने आज किया, that was an exercise in science communication and scientific communication. So I'm really glad that two of your profession, two of your important activities are intersecting with each other and imparting us and students a lot of knowledge. मैं उस बात से भी काफी सहमत हूँ जो आपने कहा नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस के बारे में कि किस प्रकार, और जो हमें जानकारी बताई नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस में मराठी, बंगाली, गुजराती आदि लैंग्वेजेस में सूचनाओं का और सही सूचनाओं का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस में फैलाई जा रही हैं. तो उस प्रकार का नॉलेज हमारे पास होना कि सही सोर्सेस इंग्लिश भाषाओं में कहाँ है हमें पता चले, वो बहुत जरूरी है. और उसकी हमें एक प्रकार से सूची बनाकर अपने क्लासरूम्स में देनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स नॉन इंग्लिश लैंग्वेजेस में भी सही सोर्सेस तक पहुंच सकें. और जो आपने फंडामेंटल ड्यूटी की बात बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है कि हमारे संविधान में ही एम्बेडेड है कि कैसे हमें साइंटिफिक टेम्पर के लिए काम करना चाहिए, हमारा कर्तव्य है वो, जो कि हमारे स्टूडेंट्स को यदा कदा ही मालूम होता है, लगभग ना के बराबर मालूम होता है कि कैसे हमारी संविधान की भावना में ही वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने की बात कही गई है, निहित है. तो ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां थी और हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस प्रकार के सेशंस में सहयोग मिलता रहेगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you. Thank you. So we also have Ujjwal sir with us who would like to add a few words. Perhaps Ujjwal ji will not be able to be online today. He joined. It's okay. I'll speak. No problem. I asked sir. Yes. I was very happy listening to the whole thing, and I thought that I will come online for a moment and express my gratitude to Nimish ji for talking to our students. Sir Nimish ji, I'm talking from Calcutta. Professor Ujjwal Kumar Chaudhary, I'm Pro-Vice Chancellor of Adams University. And this concept, with the great support of Dr. Ambarish Saxena ji, we have developed this. And just now there are students largely of NCR regions who are in the audience. Similarly, we'll be starting very soon with Calcutta nearby Northeast students also. This has been a crisis everywhere. You have taken English and non-English. That's very good actually, because the crisis is much more in the Indian language communication, whether it's Bangla or Hindi or Assamese or Marathi. There the crisis is far more. I really salute my two colleagues, very strong colleagues, Professor Yashasrika Yadav and Dr. Asa Singh, for really taking this forward. Without their support, actually, without their leadership, Ambarish ji and me have only started the work, but they have taken it forward. They have developed the detailed syllabus. They are developing extensive PowerPoint presentation, case studies. Other colleagues of theirs have also spoken already. Once in a while, I could come online and have a look at this. We will be compiling all these presentations and study materials. It would be great if you can share your material also. And we'd want these youngsters to actually go through this patiently, not just as lectures, but because they have to be brought into their life. These have to be brought into their life of how to combat, how to bust false video, how to bust false news, how to look at a picture and critically examine whether the picture is right or wrong by looking at the vehicle numbers, the dresses of the people, the way they speak, the accent that, if it is a video, then the accent and all that. So in the language in which the shops and other things are written in the background, signages on the road, from all these and many other small issues, people can identify and need not jump and share all around. That is the problem. And the differentiation between disinformation, misinformation and malinformation is a very good differentiation and very important point that has been already made. So thank you for your time. And I hope when we do for a session, for a series of sessions, we are doing 12 sessions, by the way, 12 sessions in one go.
So when we do a similar session in Calcutta, if you are available, we'll love to have you once again, if possible, for the students of Calcutta, youngsters of Calcutta. And then we are again doing, after a break, we'll do another round of for NCR region, then followed by Northeast, like that. So it's not one-off session. We are not just doing to tick a box. होता है ना, हमारी ख्वाहिशें ये है, ये tick हो गया, ये tick हो गया, ऐसा नहीं है. We are doing it with a missionary spirit that it should continue with a series. So we will be doing it over a few months actually. Let's see gradually how it is like, because too many webinars, many times students are also a little fatigued, as you understand. Even we as teachers are also a little fatigued. So we'll have to look at that. But having said this, thanks to Ambarish ji, Yashasvika ji, Asha ji, and the fact that you could come, Kapoor Sahab, for speaking today. Thank you very much for that. We are indeed indebted from the university for your time and knowledge here. I just wanted to say a few words on it. That's all. Pleasure. Thank you, sir, for your appreciation. It does makes us work harder. So, thank you, Nimish sir. The session has been enlightening and enriching. I did attend the session that last time, somewhere in April, and I have learned many things again. I second Amrish sir when he said that he has also learned a lot of things again. So it is reinforced. Sir, not only you informed us about what fake news is, but also how to spot fake news and become a responsible citizen. The seminar was extremely engaging, and I'm sure we were all more equipped to deal with fake news now. The takeaway of this seminar is to apply scientific temper to all aspects of our life and have a fulfilling life by applying scientific temper. Students, as informed in all the session, I would again like to reinforce that we will be having an evaluation when this session will be culminated, and we will be organizing a valedictory session wherein we will award the student who has attended the most lecture and has been actively engaged in the event. Like I told you in the previous lecture, asking question is important and rewarding. I would like to thank Dr. Asha for her constant contribution in the coordination of this course, Professor Ujjwal Chaudhary and Dr. Amrish Saxena for their constant guidance. The next lecture will take place on Monday, 26th October 2020. We will learn about social media etiquette, about social media positioning and self-organization. The lecture is important as our students are digital natives and spend considerable time on social media. The session will be moderated by Mr. Ritik Ghosh, Assistant Professor, Delhi Metropolitan Education. Request you to please come prepared with question, as it is important to question when learning about media literacy. Until then, enjoy the festivity. Happy Dashera and Durga Puja. Thank you. See you on Monday. Yes, sir. Thank you for your vote of thanks and conclusion, but I'd like to make one point. Yes, First sir, of all, definitely. this next session, everyone who is attending, next session is on netiquettes, and it's a very important part. Etiquettes on the net or netiquettes is a very important part. How there could be problems created because of not knowing netiquettes. How you might, without even understanding, cause some problems or cause some anxiety or cause some angst or even do something wrong without knowing the etiquettes. So please come on that. That's one. Secondly, I want to tell everyone, particularly हमारे बहुत ही अच्छे मित्र अमरीश जी को, our university is now taking up this media literacy as a 2-credit module compulsorily for all the 5,000 students of the university. They are now moving towards creating this 2-credit course compulsory, and this is inspired by this initiative that it is ongoing, and that's indeed good. So far we made 60 hours compulsory media literacy for media students. Now it is becoming for all the media students are hardly 200, but all the 5,000 students, which includes engineering and management and law and everything, it is becoming compulsory for them from the coming semester. Thank you very much, and with that, perhaps we can bring the session to an end. Thank you, sir. Thank you.